Thank you, sir, for joining us for today's event. I request you all to please take your seats on the dais. I request esteemed chief guest, PVSM AVSM retired Lieutenant General VK Chaturvedi, sir, Principal Dr. Archana Kirti Chaudhary, Madam, Mrs. Maya Kaul, Ma'am, Head of the Department of Electronics and Communication, Professor Rupesh Dubey, sir, to please come and take their seats on the dais. Esteemed guest, PVSM, AVSM, retired Lieutenant General VK Chaturvedi, sir. Respected Principal, Dr. Archana Kirti Chaudhary, Madam. Mrs. Maya Kaul, Madam. Professor Rupesh Dubey, sir, Head of the Department of Electronics and Communication. Our dear faculty and staff members and all talented students. I am Cadet Anushka Yadav. And I Cadet Sakshi Shogekar. And we welcome you all in today's event of Youth for Nation. Before getting started, let's have a short introduction of Youth for Nation. The forum, Youth for Nation, with members across the nation, aims to connect with university-level youth to tackle India's security challenges and promote global leadership. At college and university levels, the coordinators plan the events in partnership with them, while the logistics are handled by the institution. The local dignitaries oversee the gatherings, and the forum invites the speakers for its Mera Bharat Mahan lecture series for conducting the events. Now, we request Honorable Chief Guest, PVSM AVSM, retired Lieutenant General VK Chaturvedi, sir, respected Principal Dr. Archana Kirti Chaudhary, Madam, Ms. Maya Kaul, Ma'am, and Head of the Department of Electronics and Communication Engineering, Professor Rupesh Dubey, sir, for lightning of the lamp. श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I request our respected principal, Dr. Archana Kirti Chaudhary, Madam, to felicitate our guest with a sapling. Please give a huge round of applause. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, we would like to request a dynamic personality of our institution, whose guidance has enlightened lives of many students, our honorable principal, Dr. Archana Kirti Chaudhary, Madam, to share some words of wisdom with us. Very good morning to one and all. We are feeling really proud and honored that our institute is able to host Lieutenant General VK Chaturvedi, sir. I was in the impression that he is my senior, but anyway, he is senior, but not from my college. Yeah. What I can say in front of Lieutenant General. Right now, we have Madam Maya, right? Maya Kaul. You know, Maya Kaul, ma'am, is also from the army, from the defense, and at the same time, she is the mother of Manav Kaul, right? You remember in Film City, Manav Kaul. So she is the mother of Manav Kaul. So we are really honored, ma'am, that you grace this occasion with your presence. All the real heroes of the country, I really salute everyone for the same. We are really feeling honored. IPS Academy, this is really an auspicious day that you all came here, spare your valuable time and grace this occasion. My dear students, you are really fortunate enough to have the celebrity like this to address you. They spent one full day for you. They came from Delhi
and will share their ideas and views. I think they are the real, true inspirations. Wish you all the best. Today, I don't think I should spend more time. I request Lieutenant General V.K. Chaturvedi, and we will hear only Chaturvedi sir today. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, madam, for your insightful words of wisdom and for being a guiding light for all of us. To know more about the prestigious organization Youth for Nation, our team has created a short video which showcases its diversity and achievements till now. I kindly request them to play it. In every nation, the youth are both architects of tomorrow and guardians of today's dreams. Youth, from cities to countrysides, pulse in every nation. Powered by dreams and purpose, youth-led change, addressing issues and driving innovation. Narrator. Guided by mentors and supported by inclusive policies, youth are equipped with the skills, knowledge, and opportunities to realize their full potential. Together, let us embrace the power of youth. Role of youth in making Bharat entrepreneurship. Art and culture. Indian musicians. Youth in sports. Indian sportsperson. Defense. Indian Navy, Indian Army, Indian Air Force, Science and Technology. Together we will make the change. The Forum Y4N comprises senior veterans, IAS, IPS, entrepreneurs, and academics nationwide. With chapters in every state, our goal is to engage university-level youth in discussions on securing India's future amidst emerging challenges. We organize lectures under the Mera Bharat Mahan series, where local institutions host us, provide logistics, and a dignitary presides. Join us in passing on the baton of experience to the next generation. Where is it found? India. Youth for Nation speakers. The backbone of a nation. India, a superpower. In the making, be proud. Bhagavad Gita for the youth. Taking youth back to the ancient roots. Coexistence of science and spirituality. Harnessing the youth bulge and youth power. Youth roles in revitalizing Bharatiyata. Youth's roles in keeping planets safe and secure for future generations. Past events of Youth for Nation. 2-day Youth Conclave. Keynote lecture on Swami Vivekananda, the nationalistic perspective. Took meeting of about 200 students. G20 Initiative Life from the perspective of energy issues. And many more events. It was indeed a lovely video.
Now, to introduce our chief guest, I request Ayachi Pandey to take the podium. Retired Lieutenant General V.K. Chaturvedi sir, PVSM AVSM, is a distinguished alumni of National Defence Academy and Indian Military Academy, commenced his illustrious career in Regiment of Artillery in 1971. Notably, he displayed valor during the 1971 Indo-Pak War, earning the Sena Medal. Throughout his services, he held various command and staff positions, demonstrating exceptional leadership and expertise. Recognized for his contribution, he was honored with Param Vishisht Seva Medal and Ati Vishisht Seva Medal by President of India. Beyond his military services, he pursued academic excellence, obtaining degrees and diplomas in strategic studies, defense studies, and business management. Post-retirement, he continued to serve in advisory roles and as a guest lecturer in esteemed institutions, focusing on military welfare and strategic initiative. With long list of achievements, I hereby request Honorable Chief Guest to take over for the session. Thank you. थैंक्स अ लॉट आयाशी। मैडम आप लोग यहाँ बैठे हैं तो बेटर है। ऑनरेबल प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना चौधरी, माय डियर फ्रेंड प्रोफेसर रूपेश दुबे, मेरे एक पूर्व सैनिक संगठन है उसका राष्ट्रीय नेतृत्व माया कौल मैडम कर रही हैं, मेरी दीदी माया कौल, मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, Wing Commander Tiwari and my colleagues from the armed forces, and most important, these smiling faces, sparkling eyes, my dear children of this reputed academy. आज महाकाल की इस पावन पवित्र धरती पर आकर बहुत सौभाग्य मिला है। वीर वीरांगनाओं की धरती है ये। वीरांगना अहिल्याबाई होलकर, जिसने अपना पूरा जीवन प्रजा की वेलफेयर के लिए और राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए समर्पित कर दिया। ये कुमार गंधर्व की धरती है जिन्होंने अपने संगीत से पूरे विश्व को संगीतमय कर दिया। इस पवित्र पावन धरती पर आकर मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं और मैं धन्य हूं कि यहां पर आने का मुझे मौका मिला। आपने फिल्म देखी, हमारे एक संगठन है युवा राष्ट्र के लिए, ये कुछ समर्पित राष्ट्र के पूर्व सैनिक हैं, राष्ट्र के कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने मिलके इस संगठन को स्थापित किया है। आज से करीब 10-12 साल पहले लेफ्टिनेंट जनरल एनएस मलिक के नेतृत्व में और प्रोफेसर जीएस मूर्ति, हमारे एक श्रद्धेय प्रेरणा स्रोत्र हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बहुत बड़े उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनकी प्रेरणा से ये स्थापित हुआ। हम लोग अनौपचारिक रूप में पूरे भारत में सही दिशा मार्गदर्शन करने के लिए बच्चों से रोटरी में, अलायंस में, ऐसे ग्रुप्स में, एडवोकेट्स के ग्रुप, इन सब में बातें करते थे और करीब 2 साल पहले इसकी औपचारिक स्थापना हुई है, जो अभी दिखाया कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं और किस तरह से। आज एज ऑन डेट 4 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने बच्चों से बातें कर ली हैं और उनको राष्ट्र धर्म
राष्ट्र हित के बारे में, राष्ट्र निर्माण के, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन संबंधों के बारे में हमने उनसे चर्चा की। आप सबको मालूम है भारत एक युवा राष्ट्र है। भारत की 65% जो जनसंख्या है वो 35 वर्ष से कम की है, और यही स्थिति अगले 25 वर्ष, जब हम 2047 में अपने 100 वर्ष स्वतंत्रता के मनाएंगे, तब तक चलता रहेगा। बड़ी आबादी वालों के जो राष्ट्र हैं उनमें भारत इन पूरे 25 सालों तक युवा राष्ट्र बना रहेगा। युवाओं ने राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की सुरक्षा में सदैव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज का जो विषय है वो भी है रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, कि युवाओं की राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका होनी चाहिए। ये मेरा आज चर्चा का विषय है। पुरातन काल से, आदिकाल से युवाओं ने एक बहुत अद्वितीय, अनुकरणीय, अतुलनीय योगदान राष्ट्र के निर्माण में दिया है। आज मैं 2 युवाओं के बारे में बात करूंगा यहां पर। स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दोनों अलग अलग फील्ड से हैं। स्वामी विवेकानंद अध्यात्म के फील्ड से हैं, नेताजी स्वतंत्रता संग्राम और समझिए एक सैनिक के रूप में उनका साहस और शौर्य की गाथाएं हम सब ने सुनी है। स्वामी विवेकानंद 38 साल की उम्र पे, 38 years of age, he had left this world. ये विश्व को छोड़ के चले गए थे। लेकिन वो क्या हम सबको देके चले गए, जिसके ऊपर आज भी अध्ययन होता है, उनके भाषणों के ऊपर रिसर्च की जा रही है, उनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, जो किताबें उन्होंने लिखी गई हैं उनके ऊपर थीसिस लिखी जा रही है, और उनका फेमस 1893 शिकागो में जो भाषण था, इट वॉज इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन रिलीजन, धर्म संसद, विश्व में धर्म संसद हो रही थी 1893 में, और वहां पे उन्होंने हिंदुत्व के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये ऐसी पद्धति है जो सबको साथ लेकर चलती है। इट बिलीव्स इन केयरिंग एंड शेयरिंग, दूसरों के साथ, दूसरों की परवाह करना, दूसरों के साथ बांट कर खाना, उसमें हम लोग बिलीव करते हैं। उसका उदाहरण आप सबने देखा वैक्सीनेशन, कोरोना के टाइम में, जब विश्व में सब लोग कोविड महामारी से पीड़ित थे, भारत ने जब वैक्सीनेशन बनाई तो एक भारत अकेला विश्व में एक ऐसा देश था जिसने उसको 78 राष्ट्र जिनके पास इतने साधन नहीं थे कि वो वैक्सीनेशन अफोर्ड कर सकें, उनको दी। ये भारत की प्रतिष्ठा, भारत की गरिमा, भारत का जो नैतिक मूल्यों का वो है, वो के बारे में बता रहा हूं। और हमने वही वैक्सीन दी जो हमारे भारतवासियों ने लगाई। हमने वो नहीं किया जो अमेरिका ने 1964-65 में किया था हमारे साथ। तब भारत इतना संपन्न नहीं था, भारत में गरीबी बहुत ज्यादा थी, और भारत खाद्यान्न, फूड सिक्योरिटी भी हमारे पास नहीं थी। ये स्वामीनाथन जी ने जो बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन लाके किया है, हम उस वक्त नहीं थे, हमारे पास अन्न की कमी थी। मैं उस वक्त सैनिक स्कूल लखनऊ में था। आप लोगों ने शायद किताबों में पढ़ा हो, लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस वक्त पूरे राष्ट्र से एक आग्रह किया था कि हफ्ते में एक दिन उपवास करें, पूरा राष्ट्र। हम लोग भी एज कैडेट्स, 12-13 साल के हम लोग कैडेट्स थे, और मुझे याद है कि हम लोग सोमवार को व्रत करते थे। दैट इज भारत। और उस वक्त यूएस ने हमको
जो अन्न दिया, वीट, गेहूं, PL480, सड़ा हुआ रॉटन वीट हम लोगों को दिया, और वो हम भारतवासियों ने, मैंने भी खाया. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट भारत इज एंड व्हाट यूएस इज. प्लीज, जो हमारे नैतिक मूल्यों को कभी नहीं भूलना है. उसके बावजूद जब कोरोना का समय आया तो भारत ने वो व्यवहार नहीं किया. दैट इज भारत. अब मैं दूसरा युवा के बारे में बात करूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. एक ऐसे हस्ती थी, बड़े अच्छे रिप्यूटेड फैमिली ऑफ कटक, प्रतिष्ठित परिवार था, संपन्न परिवार था, उसमें उनका जन्म हुआ. आपके फादर जानकी दास बोस वॉज अ फेमस एडवोकेट इन कटक. अच्छा रहन सहन, पालन पोषण सब बहुत अच्छा हुआ. प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई, फिर बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड गए. शिक्षा के क्षेत्र में बहुत गुणी थे, धनी थे, और ICS परीक्षा, जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज IAS का प्रीकर्सर होती थी, उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 4th पोजीशन उस कंपटीशन में पाया. लेकिन जब जलियांवाला बाग हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने हमारे भाई बहनों, हमारे बच्चों, हमारे बुजुर्गों पर बैसाखी के दिन, उस पवित्र दिन जिस दिन सब लोग खुशियां मनाते हैं, जलियांवाला बाग में वो 4 दीवारी में गोलियां बरसाई उन निर्देशों, निहत्तों पर. बेचारों को कहीं जाने की भी जगह नहीं थी. वो वहां पे वेल था, उसमें ही काफी लोग कूद पड़े और सब भगवान को प्यारे हो गए. तब उन्होंने निश्चय किया कि ऐसी अत्याचारी सरकार की मैं सेवा नहीं करूंगा. त्यागपत्र दे दिया, भारत आ गए, स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन को अर्पित कर दिया. 1943-44 में एक ऐसी संस्था, आजाद हिंद फौज, आप सब ने सुना होगा इंडियन नेशनल आर्मी का नाम, जो कि विलुप्त होने वाली थी. कैप्टन मोहन सिंह ने इसको रेज किया था. विलुप्त होने वाली थी, उसमें ऐसी जान भर दी, उत्साह भर दिया, उमंग भर दी कि वो सब फिर राष्ट्र के लिए समर्पण करने के लिए तैयार हो गए. एंड दिस फोर्स, ये ऐसी फौज थी which operated in the most inhospitable terrain and rugged terrain of the northeast. Extreme weather conditions it operated in, जहां आज भी भारतीय सेना को ऑपरेट करने में दिक्कत होती है. And they beat the mighty British Empire, की जो आर्मी थी, at Moirang on 14th April 1944. 2 दिन बाद उसका हम लोग उस मोरंग डे मनाते हैं. ये मेरे सारे संगी जितने भी हैं, ये सब मोरंग, इम्फाल के पास 60 किलोमीटर है. हम लोग वहां जाके उन वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देते हैं. They beat the mighty British Empire, and what he had to give, नेताजी के पास कुछ नहीं था इन लोगों को देने. आप सब ने सुना होगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. That was the only नारा that he had. But look at this, समर्पण, उनके प्रतिबद्धता, राष्ट्र प्रेम की भावना, कि these people beat the British Empire की आर्मी को. एंड पहली बार मोरंग में तिरंगा झंडा लहराया गया 14 अप्रैल 1944 को. 26,000 ऑफ देम, टोटल ऑफ 60,000 में से 26,000 ऑफ देम गेव देयर अल्टीमेट, सर्वोच्च बलिदान दे दिया भारत के लिए. एंड लुक एट द विजन ऑफ दैट मैन. उनकी दूरदर्शिता देखिए कि he raised a महिला battalion in 1943 led by Captain Lakshmi Sehgal. He believed
कि जब तक राष्ट्र का जन जन हर कंधा राष्ट्र निर्माण में नहीं लगेगा, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। और हम अपनी 50% जनसंख्या को पीछे नहीं रख सकते। एंड दैट वाज इन 1943-44 इन दोज डिफिकल्ट कंडीशंस एंड टाइम्स। Indian Army inducted women in 1991, so many years later. But हमारी ये वीर वीरांगनाएं जो थी वो 1943 में कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रही थी। So this is what the youth is, and he also left at a very young age of about 47 years. Nobody knows how he left us, but it is believed that he died in a air crash. I'll now switch to a little different. My talk will basically be on Indian values, Indian strengths, and that is what I am going to talk about to you. Modernity and traditions, आधुनिकता और परंपरा। Modernity, we all, if you put on a different type of clothes, speak in a different accent, you are modern. मेरे बच्चों, यह सही नहीं है। मॉडर्निटी, आधुनिकता इज ऑफ मस्तिष्क, आपकी माइंड की है, आपकी विजडम की है, आपकी नॉलेज की है, विवेक की है, ज्ञान की है। मेक योर सेल्फ इतना सक्षम समर्थ बनाओ अपने आप को, ज्ञान को हासिल करो कि यू कैन डिस्कस, थैंक यू, with the best in the world and debate with the best in the world on aerodynamics, aerospace, artificial intelligence, satellite communication, space. That is what is modernity is all about. But when it comes to traditions, परंपराओं की बात आती है, हमारी विरासत की, हमारी धरोहर की बात जब आती है, तो ये हमारे अपने हैं, ये हमारी पहचान है। यू नेवर गिव इट अप। हमारे रीति रिवाज, हमारे तीज त्योहार, हमारा खान पान, हमारे रहन सहन, हमारा पोशाक, ये हमारे अपने हैं। हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स, राष्ट्र के प्रतीक, नेशनल सिंबल्स, दीज आर आवर ओन। इन पे हमने गर्व करना है। इनको हमने चाहे जहां भी जाएं आप, यू मे बी इन कनाडा, यू मे बी इन सैन फ्रांसिस्को, लंदन, कैनबरा, टोक्यो, हांगकांग, लेकिन टेक प्राइड इन व्हाट इज आर्स, जो हमारे हैं इनमें गर्व और सम्मान के साथ रखो। अगर ट्रफलगर स्क्वायर लंदन में हमारा राष्ट्रीय गान गाया जाता है तो स्टैंड फॉर दोज 52 सेकेंड्स, सावधान में खड़े हो जाओ। आपकी रेस्पेक्ट होगी, आपका सम्मान होगा, लोग कहेंगे कि ये भारतीय है जो उसको भारत पर गर्व है। एंड इफ सम अतिथि, कोई आपके सम गेस्ट कम्स टू योर हाउस, ऑफर हिम व्हाट यू हैव। अगर यहां पे पोहा जलेबी फेमस है, ऑफर दैट मैन ऑल्सो द सेम थिंग। यू विल बी रेस्पेक्टेड, ही विल रेस्पेक्ट यू। उसे समझ में आएगा कि ये अपने राष्ट्र पर, अपने खान पान पे, अपने तीज त्योहार, अपने रीति रिवाजों पर गर्व करता है। दैट्स हाउ सम्मान कम्स टू अस, दैट्स व्हाई हाउ भारत इज गोइंग टू बी नोन। राष्ट्र प्रथम, सदैव एवं सर्वदा। आप सब ने, जो भी आर्मी यूनिट्स में या मऊ में आप जाते होंगे या भोपाल में कैंटोनमेंट में, जब आप प्रवेश करेंगे तो वहां पे एंट्री गेट पे लिखा है नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। एंड दैट इज व्हाट डिराइव्स द इंडियन आर्मी, द इंडियन आर्म फोर्सेस टू ले डाउन देयर अल्टीमेट फॉर द नेशन। द फेमस Chatwood saying, you all must have heard and read, the safety, honor
and welfare of your country comes first, always and every time. The ease, comfort, and welfare of the man you command comes next. Your own comfort, ease, and welfare is last, always and every time. जब हित की बात आती है तो राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं है. जब प्रेम की बात आती है तो राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है. जब सम्मान की बात आती है तो राष्ट्र सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं है. जब गौरव की बात आती है तो राष्ट्र गौरव से बड़ा कोई गौरव नहीं है. जब सेवा की बात आती है तो राष्ट्र सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है. और माय डियर चिल्ड्रन, जब भक्ति की बात आती है तो राष्ट्र भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है. देन हमारे जात पात, हमारे सब भक्ति सिस्टम वगैरह सब सेकेंडरी हैं. हमारा राष्ट्र प्रथम है. राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे. और दैट इज व्हाट you have to imbibe in you and pass it on to the next generation. That's how the युवा की जो भूमिका है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं. We cannot have our railway stations being burnt, our police stations being burnt, our buses being burnt. We can't do it. ये हमारे हैं, हम सबका पैसा है इनमें लगा हुआ. We can never do this. हम उसकी रक्षा के लिए हैं. So that is what we must always understand. एक पुरानी पोएम मुझे याद आती है, मैंने सैनिक स्कूल में पढ़ा था. जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. And this is what we all need to imbibe. राष्ट्र हमारा है. आप सबने बहुत फेमस सॉन्ग मनोज कुमार का, मिस्टर भरत जिनका नाम पड़ गया उसके बाद, सुना होगा. है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं. तो प्रीत, हार्मनी, गुडविल, प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, दीज हैव बीन आवर ग्रेटेस्ट नैतिक मूल्य. ये हमारे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ रही हैं और यही इस भारत को सबसे आगे ले जाएंगी. अब मैं एक दो चीजें आप सबका. स्टेबल गवर्नमेंट, माय डियर चिल्ड्रन, इट्स नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल एंगल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. वी हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट. अदरवाइज बाय नाउ वी वुड हैव बीन कंपीटिंग विद यूएसए इन ऑल fields, whether it is military, economic, diplomatic, any field, scientific, we would have been competing with the United States. We suffered a lot. Elect stable government, whichever government you want to. I am not at all talking about a particular. Whichever government, give it the teeth. उस गवर्नमेंट को आप शक्ति दें कठोर निर्णय लेने के लिए. राष्ट्र हित में कठोर निर्णय ले, तभी हम लोग आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे. स्ट्रॉन्ग लीडर्स, वी नीड स्ट्रॉन्ग लीडर्स जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र के इंटरेस्ट में कठोर और डिफिकल्ट डिसीजन ले सकें. लीडरशिप इज नॉट इजी. अ लीडरशिप इज वन हु कैन टेक द राइट डिसीजंस और at least the correct decision in very difficult situation where your future is not known. It's a gray area, not black and white. You don't know what can happen, but you have to take a decision. So you elect and select strong leaders. Balakot, I'm just giving you an example, was not an easy decision. Anything could have happened. The war would have been broken out. It would have led to war between India and Pakistan. Some of those 20 aircraft which had gone to Balakot to destroy that terrorist camp would have been shot down by Pakistan Air Defense. Some of the pilots would have been captured. Some may have died. Anything could have happened. But to take a decision of that type, have faith in your armed forces, you need guts. You need strong leaders. And that is what I am talking about. Not from any political angle. Please. You need people who can take such decisions. Indira Gandhi took one in 1971.
It was also not an easy decision. But there was a lady who took that strong decision. So elect strong leaders. And this Balakot, I can tell you, was something like what Entebbe raid. Some of you were not even, none of you would have been born, except some faculty members may have been. 1976. There are books on this Entebbe raid. An Israeli aircraft was hijacked by Ugandans and they had taken it to Uganda. 102 Israelis were on board that hijacked aircraft. They wanted release of 13 to 14 terrorists from Israel. Tremendous pressure on Israel. Almost 1 week the negotiations continued. And they were almost at the verge of buckling under that pressure and releasing those 13 to 14 terrorists. When the Raksha Mantri, the defense minister of Israel said, no, nothing doing. We will not succumb to this pressure. We will launch a raid and get our people back. If we succumb today, tomorrow there will be some other demand, day after something else, and we'll be considered a weak nation in the committee of the nations of the world. A raid was launched by a company which was led by Lieutenant Colonel Netanyahu, the present Prime Minister's elder brother. And let me tell you, my dear children, when you take strong decisions, have faith in your armed forces, the results are astoundingly different. This raiding party, this company strength party, destroyed 65% of the air force of the Uganda. Got each 101, 102 of them back to Israel. And the only casualty was the leader, this Lieutenant Colonel Netanyahu. This is what happens when you take a strong decision in national interest. That must be the foremost. Whatever you are doing in the national interest. So this is what you need. I'll talk about some blunders. Not, again, I'm mentioning you, it's not from political angle. I'll talk about blunders so that they are not repeated. And most of us don't know it. I'm an army man, that's why I know about it. 1947, we got our independence. In fact, I always believe that we were partitioned. It was hardly an independence. But for everybody on papers, it is independence of India. 15th August 1947, we became independent. Why did we permit Lord Mountbatten to remain in India after 15th August 1947? Why was C. Rajagopalachari was not appointed the Governor General on 15th August 1947 or on 16th August? No country in the world has done it. They don't permit. 1971, our nation created another nation. This is for the first time in the annals of military history that through a military action, a nation was created. It has never happened. We created Bangladesh, and 16 December we took the surrender. 1st January onwards, we were getting out. There was no leadership left in Bangladesh after 15th of January. We'll give it to Sheikh Mujibur Rahman to govern. He desired some engineering effort and he desired some communication effort. Our signalers and engineers remained till end March. But that was at the request, because हमारे ब्रिज टूट गए हैं, उनको रिपेयर करना है, हमारे कम्युनिकेशन नहीं है, लाइंस खराब हैं, तो इसलिए कुछ लाइंसमैन चाहिए, ये सब इसलिए हमने, but leadership wasn't there. We permitted Lord Mountbatten to stay on. And can you believe, our first Chief of Army Staff, none of you will know, was a Britisher, Sir Robert Lockard. The second chief was also Sir Butcher. When we were fighting those so-called Qabilis in J&K in Kashmir, we were being led by a British general,
So was, the most surprising thing, the Pakistan army was also being led by the British general. जब हमारी लड़ाई कश्मीर में हो रही थी और हम उनको खदेड़ रहे थे, we would have finished and taken them off the present POK. We could have recaptured that area. We were asked to cease fire. Because both these generals were reporting to Auchinleck in England. They had no love lost for India. उनको भारत से कोई मतलब नहीं था. But we permitted. That was our mistake. Thereafter, we appointed Field Marshal Kareppa as the first chief in 1949. He could have been appointed on 16th August, the moment the Prime Minister took office. And when he went with the proposal, because a lot of our army had gone to Pakistan, a lot of our equipment had gone to Pakistan, we needed to restructure our army. We need to equip our army to defend our borders. When he went with the proposal to the then Prime Minister, he was told that we are a peace-loving country. हम शांति के दूत हैं. We don't need the army. The police can look after. And 62 was the result. Even in 62, let me tell you, my dear children, these are very important things you must know. We were ill-equipped, ill-prepared, ill-clothed. But the personal bravery of the people, the soldiers, was still displayed at the highest level. Even today, the world reads Rezangla battle. वो बहादुरी, शौर्य, पराक्रम की गाथाएं आज भी लोग मिलिट्री हिस्ट्री में गाते हैं. रेजांगला की लड़ाई 17,000 फीट की ऊंचाई पे ये तैनात थे. विंटर्स का, अक्टूबर नवंबर में वहां विंटर्स होती हैं. समय था 120 जवान, 40 कंपनी, 13 कुमाऊं, हमारे रेवाड़ी के पास के गांव के मोस्ट ऑफ देम जवान थे, वहां के थे. चाइनीज वर 2000 प्लस, 7-8 अटैक कर चुके थे इस पोस्ट पे. वो इस पोस्ट को कब्जा करना चाहते थे. दे वर टोल्ड बाय द हायर हेडक्वार्टर्स, विथड्रॉ, आप यहां पे होल्ड नहीं कर सकते, आपको वापस आना पड़ेगा. ये सब वहां पे बैठे. मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में, जोधपुर के पास के रहने वाले हैं, और उन्होंने बातचीत की आपस में कि हमको क्या करना चाहिए. और ये भारत के वीर, इन्होंने कहा ये भारत की भूमि है. जब तक हमारे शरीर में प्राण है और हमारे नसों में खून बह रहा है, हम इस धरती को नहीं छोड़ेंगे. This is what they decided. And my dear children, 113 of them out of 120 gave their ultimate. उन्होंने सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र के लिए कर दिया. 7 बाकी थे जो कि इतनी बुरी तरह से जख्मी थे कि वो लड़ भी नहीं सकते थे, और उनको भी सोच के कि ये मरे हुए हैं, छोड़ दिया. उन वीरों की गाथाएं कहने वाला कोई नहीं था. दैट्स वाई मेजर शैतान सिंह को 5-6 महीने बाद जब किसी और ने उनकी शौर्य गाथा कही, कहीं किताब में लिखी गई, किसी ने आर्टिकल लिखा बाहर से, तब उनको परमवीर चक्र मिला. ये भारत के वीर हैं. यहां पे तो मैं ये कह रहा हूं कि वी मेड अ मिस्टेक. A strong armed forces are a guarantee for peace. This is something which I am talking about. Armed forces are not meant to fight war. मैं फौजी 40 साल फौज में रह के बता रहा हूं कि armed forces are not meant to fight war, but they are meant to prevent war. वो लड़ाई को बचाने की, लड़ाई ना हो और उसके बिना हम अपना लक्ष्य हासिल कर लें, इसलिए
We need strong armed forces. We need modernized armed forces. We need the best troops in the world that we have. उसमें मेरे को कोई शक नहीं है. भारत के जो जवान हैं, भारत के जो वीर हैं, भारत के जो हर भारतीय है, उसका जो जज्बा है वो इस अतुलनीय है. ऐसे नहीं मिलेंगे कहीं भी. The art of war is to win a war without fighting. That is what is the strategy. अगर हम स्ट्रांग होंगे, no one dare touch us. आप देख रहे हैं अमेरिका में स्ट्रांग आर्मी है, स्ट्रांग आर्म फोर्सेस हैं, किसी की हिम्मत, सारे बॉर्डर सुरक्षित हैं, शांत हैं. वो जहां चाहता है वहां शांति कर देता है. आज यूक्रेन में कर दी, कल गाजा में कर दी, परसों तैवान में कर देगा. बट उसके अपने बॉर्डर्स, सीमाएं उसकी सुरक्षित हैं, शांति है. सो वी नीड स्ट्रांग आर्म फोर्सेस. वी नीड वेल इक्विप्ड modernized armed forces. Thereafter, you can take 65 war. We won Haji Pir. That at a great cost to that para battalion which captured Haji Pir. हाजी पीर अगर आज हमारे पास होता तो पुंछ रजौरी से जो उड़ी की तरफ का रास्ता है वो मुश्किल से आधा घंटे 45 मिनट में हो जाता. आज जो हम वापस जम्मू आते हैं और जम्मू से फिर श्रीनगर होते हुए उड़ी जाते हैं, देखिए कितना. We won in 65, gave it up at Tashkent. 1971 war, we created a nation, captured 93,000 prisoners of war of Pakistan. We couldn't get back. Returned those 93,000 to Pakistan at Shimla, but we couldn't get our 54 back. हमारे 54 prisoner of war अब तो शायद बेचारे कोई इस संसार में भी नहीं होंगे, हम उनको वापस नहीं ला पाए. We have always, हमने जहां भी भारत ने जरूर शौर्य और पराक्रम, वो उसमें कभी कमी नहीं रही, लेकिन हम टेबल पे जरूर हारे हैं. उसके लिए अब हमको हमेशा आगे के लिए सावधान रहना है. अभी मुझे बड़ी खुशी हुई जब अमेरिका हम पे प्रेशर डाल रहा था, रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था कि आप S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से नहीं लेंगे, हम सैंक्शन करना चाहते हैं, मत लीजिए. एंड आवर गवर्नमेंट टोल्ड देम, हु आर यू? वी विल डिसाइड व्हाट वी वांट. भारत डिसाइड करेगा कि हमको क्या चाहिए. हु आर यू टू टेल अस नॉट टू बाय फ्रॉम S-400 फ्रॉम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम फ्रॉम रशिया. सिमिलर वाज द पेट्रोल फ्यूल का, आप सबने पढ़ा है. वी वर बीइंग टोल्ड नॉट टू बाय फ्रॉम Russia because they were giving it a little cheaper. Transportation was also less. And we told them, what are you talking? The Europe buys in one afternoon what we buy in 1 month. तो आप यूरोप को मना नहीं कर पा रहे हैं. How are you telling us? These are national interest. जब राष्ट्र की बात आए तो राष्ट्र प्रथम, फिर कुछ नहीं, ना मेरा भाई, ना बंद, ना दोस्त, कुछ नहीं, फिर केवल राष्ट्र है, और जो राष्ट्र हित में होगा वो निर्णय लेंगे. सिमिलर इन 87-88 वी वेंट टू श्रीलंका फॉर नथिंग. हम किसी दूसरे की लड़ाई फॉर जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारे तमिल भाई है वहां पर, और हम वहां पे उनकी लड़ाई लड़ रहे थे. एंड दैट इज व्हाई द इंडियन आर्मी गॉट अ बैड नेम. सो दीज आर दोज ब्लंडर्स which we must take note of, learn our lessons, and do not repeat in future. This is what it is. भारत को बनाने वाला हर भारतीय है. भारत की सुरक्षा केवल आर्म फोर्सेस की नहीं है, सारे भारतीयों की है, हर की, ईच एंड एवरीबॉडी. जो हमारा जवान सरहद पे सीमा पर खड़ा हुआ है, उसकी प्रेरणा इंदौर में, ये आप बच्चे हो, ये जब आप 71 वॉर, आई रिमेंबर, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था. द वॉर फिनिश्ड ऑन 16th. वी केम आउट ऑन 1st January. शिलोंग में जब हम वापस आ रहे थे, अरुणाचल जाना था हमने, मेरे 2IC मेज BS नलवा लेटर लेफ्टिनेंट जनरल बने थे बाद में.
God bless his soul, he is no more. He said, Vishnu, because मैंने just 3 महीने पहले यूनिट ज्वाइन की थी, विष्णु तेरे माता पिता बहुत चिंतित होंगे, तू 7 दिन की छुट्टी चला जाए. He sent me from Guwahati. I took a train to Barauni. Barauni में मीटर गेज से ब्रॉड गेज उस वक्त चेंज होता था. Barauni to Kanpur. I belong to a place, very small place, फतेहगढ़. Throughout the journey, 15 दिन लड़ाई खत्म हो गए थे. जहां भी वो ट्रेन रुकी है, हमारे भारतवासी कहीं चाय लेकर आ रहा है, कोई मिठाई लेके आ रहा है, कोई फूलों की वर्षा कर रहा है. That was amazing. आज तक नहीं भूला हूं उन दृश्यों को. It is more than 50 years. दिस इज भारत. मैंने वो भी देखा है कि हमारे भारत संपन्न देश नहीं था उस वक्त, ना इतनी आज जो हमारी 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी है नहीं थी. मुश्किल से 70 बिलियन के करीब थे हम लोग. लेकिन तब भी जब राष्ट्र को जरूरत थी, हमारी माताओं ने, बहनों ने अपनी चूड़ियां राष्ट्र के लिए दे दी. दिस इज भारत. इसमें प्राइड करो और इस पे गर्व करो, इस पे सम्मान करो. एंड कम अप टू दैट स्टैंडर्ड जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए हैं. हमने किसी की जमीन कभी नहीं, किसी को सताया नहीं, किसी को मारा नहीं, कभी नहीं किया. हम नैतिक मूल्यों पे बहुत ऊंचे रहे हैं हमेशा. उनको पालन करो, उनको फॉलो करो. भारत ज्ञानवीरों की धरती है. दिस इज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. भारत में ज्ञान की गंगा बहती है. यहां विवेक, मस्तिष्क, दूसरे की परवाह करने की उस तरह की गंगाएं बहती हैं. सुश्रुत, वराहमीर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वेद व्यास, चाणक्य, पतंजलि, मैत्री, गार्गी, पाणिनि, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, और अभी अगर आगे आ जाएं तो सीवी रमन, जेसी बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामचंद्र परमहंस, और बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, पराग अग्रवाल. आपकी जवान थक जाएगी, लेकिन ऐसे ज्ञानवीरों की कभी भी न कमी नहीं पड़ेगी भारत में. आज भी नासा में 50% साइंटिस्ट आर इंडियन. वर्ल्ड की, विश्व की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उनके जो हेड हैं आज भी इंडियंस हैं. और भारत का प्रतिभा देखिए, 1917 भारत से एज बॉन्डेड लेबर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, गिरमिटियाज, दे वेंट टू कैरेबियंस, दे वेंट टू फिजी, दे वेंट टू मॉरिशस विद गंगा जल का एक कमंडल और एक गुटका लेकर गए थे. बट लुक एट दिस परमार्थ इन लोगों का. दे रोज टू द हाईएस्ट लीडरशिप रोल्स इन ईच ऑफ दोज कंट्रीज. सब जगह भारत के भारतीय, कोई प्रेसिडेंट बना, कोई प्राइम मिनिस्टर बना. सो दैट इज हमारी जो ज्ञान की गंगा है, वो ये है. आज अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन की है. इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन के हैं, ऋषि सुनक. और तमाम यूरोपियन कंट्रीज में, लेट मी टेल यू, देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर ऑफ इंडियन ओरिजिन. डे इज नॉट फार ऑफ दैट ज्ञान के क्षेत्र में, वसुदेव कुटुंबकम के क्षेत्र में हम सद्भाव, प्रेम, नैतिक मूल्यों के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेंगे. भारत दानवीरों की धरती है. भारत में कभी भी अगर एक अच्छी नीयत से कोई योजना बनाई हो जो कि राष्ट्र हित में हो, समाज हित में हो, उसके लिए पैसों की कभी कमी नहीं पड़ी. ये दानवीर दधीच की धरती है. ये महाराजा हरिश्चंद्र की धरती है, पन्ना दाई की धरती है, सती सावित्री की धरती है, दानवीर कर्ण की धरती है, एकलव्य की धरती है. तो आपने देखना है कि ये जो हम वेल्थ क्रिएशन इज नॉट बैड, क्रिएट वेल्थ, बट उसको फिर सही रूप से राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, परिवार के दूसरों के लिए उसको सही उपयोग करना बहुत जरूरी है. और तीसरा जो है, भारत शूरवीरों की धरती है.
कुछ मैंने प्रसंग पहले बता दिए हैं आपको, लेकिन भारत में राष्ट्र के लिए समर्पण होना, राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों की कभी कमी नहीं रही। आज तक राष्ट्र पे जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जब उसकी बॉडी उसके गांव में आती है तो किसी पत्नी ने ये नहीं कहा कि राष्ट्र ने मरवा दिया, किसी माँ ने नहीं कहा कि मेरे बेटे को मरवा दिया, किसी बेटी या बेटे ने नहीं कहा कि मेरे पिताजी को मरवा दिया। सब ने उस बलिदान के ऊपर गर्व किया है, सम्मान किया है, और ये राष्ट्र ने भी उतना ही सम्मान दिया है। ये भारत है। आप पुरातन काल से ले लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य, केशव देव राय, पृथ्वीराज चौहान, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, और फिर मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, जिसने कहा आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, यानी शॉट हिमसेल्फ जब ब्रिटिश पुलिस उसको पकड़ने आई एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। राम प्रसाद बिस्मिल, असफाकुल्ला खान, बटकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, हु वॉज नॉट इवन 18 ईयर्स, उसके लिए 6 महीने वेट करना पड़ा उसको फांसी की सजा देने के लिए। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नामों की कमी नहीं है। और फिर स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ शर्मा, जदुनाथ सिंह, मेजर शैतान सिंह, धान सिंह थापा, एवी तारापुर, अरुण खेत्रपाल, एनजेसी नायर, निर्मलजीत सिंह सेखों, मेजर परमेश्वरन, और अभी कारगिल में कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा ऑफ दिल मांगे मोर, संजय कुमार, योगेंद्र यादव, मनोज पांडे, लुक एट द लेटर दैट ही रोट टू हिज मदर, जिसमें उसने लिखा था कि मां, मैं या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा उस चोटी पर, या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। दिस इज भारत। ये भारत सूरवीरों की शौर्य और पराक्रम की गाथाएं यहाँ पे अनंत हैं। और कभी भी किसी ने राष्ट्र के लिए, सही काम के लिए, हमने हमेशा अधर्म के लिए के अगेंस्ट लड़ाए हैं। हमने अपने बेटे बेटियों, अपने भाई बहनों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने किसी की जमीन हथियाने के लिए कभी नहीं की। नेशनल सिंबल्स, आई टॉक्ड अबाउट इट अ लिटिल अर्लियर ऑल्सो। आर नेशनल फ्लैग, और नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, जन गण मन, ये हमारे प्रतीक हैं, हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, हमको बताया गया है कि ये है, और इनसे हमने प्रेरणा लेनी है और इनका हमने सम्मान करना है। जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है और राष्ट्रीय गान गाया जाता है तो हमको वो 52 सेकंड खड़े होने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए, चाहे कहीं भी हो, किसी भी ड्रेस में हो। 52, मेरी दादी 4 साल पहले, मेरी चाची जी, बच्चे दादी कहते थे तो मेरे मुंह से भी दादी निकला, तो वो बेचारी लेटी होती थी और कभी टीवी पे 26 जनवरी 15 अगस्त को वो नेशनल एंथम तो वो खड़ी हो जाती थी। दैट इज व्हाट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम आवर पीपल, हमारे पूर्वजों से हमने सीखा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आई होप आई हैव टाइम, नॉट ओवर शूटिंग। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी विरासत है। भारत में अगर कहीं पोंगल होता है, कहीं मकर संक्रांत होती है, कहीं बिहू होता है, ये सब एक हमारे जो एक गार्डन है उसके फूल हैं, और ये हमारी शक्ति है। जब नॉर्थ ईस्ट से कुछ फर्नीचर बांस का बन के आता है, या कीरतपुर में लकड़ी का काम होता है, या शिरडी में कुछ वहाँ पे पत्थरों का एक म्यूजियम बना हुआ है, ये सब हमारी खूबसूरती, और इसको हमेशा स्ट्रेंथ, हमारी शक्ति, हमारी ताकत समझिएगा। कभी ये गलत नहीं हो सकता। हमारे रीत रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कुछ, साउथ में कुछ, नॉर्थ में, बट भावना एक है, हमारे भाव एक हैं, हमारे भावना और उसको भारत के प्रति जो निष्ठा है वो एक है।
आज से 6 साल पहले एक सियाचिन में एक एवलांश आया था, 16-17 फुट स्नो के बीच में एक नायक हनुमंतप्पा अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला था, दब गया। लेकिन आप देखो, वो सांस ले रहा था क्योंकि उसे मालूम था उसका कमांडिंग ऑफिसर जो कर्नल साहब थे वो वहीं बैठा होगा, उसको बचाने की कोशिश कर रहा होगा, और वो कर्नल साहब हमारे चेन्नई के थे। दिस इज भारत, ये हमारी विविधता और एकता की बात मैं कर रहा हूं। दिस इज व्हाट वी नीड टू इंश्योर, दैट वी नीड टू प्रिजर्व दिस डाइवर्सिटी, प्रिजर्व दिस विविधता, और इसको लेकर हमने इसमें गर्व करना है कि ये हमारा भारत है। द बेस्ट ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन बलुकपोंग नियर तेजपुर। जब हम बॉमडीला की चढ़ाई चढ़ने से पहले राइट साइड एक छोटी सी जगह है, बट द बेस्ट ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड आर देयर, वी डोंट नो। हमको अपने राष्ट्र को बारे में ये चीजें जानना है। दालचीनी सिलचर में, ऑरेंजेस अरुणाचल में, आउट ऑफ द वर्ल्ड, पाइनएप्पल्स, लीची बहुत बढ़िया खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट में होती है। वी मस्ट नो अबाउट इट, वी मस्ट टेक प्राइड। एक सशक्त, सक्षम, समृद्ध, संपन्न, सुदृढ़, स्वावलंबी, स्वाभिमानी भारत हम सब की परिकल्पना है। सब, वी आर द जनरेशन अहेड ऑफ यू, और मे बी 2 generations अहेड ऑफ यू। ये हम सब की परिकल्पना है, और इसको, इस ध्येय को पूरा करने में, इस लक्ष्य को पूरा करने में, ये मेरे बच्चे, आप जो सामने बैठे हो, you are going to achieve it, I have no doubt, and it may happen, it will happen during my lifetime, which is not much. You have to do it, I have no doubt। भारत यश और कीर्ति के शिखर पे पहुंचेगा, भारत का विश्व में एक अलग स्थान होगा, भारत विश्व का ज्ञान, नैतिक मूल्यों, प्रेम, सौहार्द, सद्भाव के क्षेत्र में नेतृत्व करेगा। एक बार मैं फिर डॉक्टर अर्चना चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रोफेसर रूपेश को, आप सबको, फैकल्टी मेंबर्स को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने मुझे ये अवसर दिया यहां पर आके आप सबसे बात करने के बारे में। मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हमने एक दूसरे से आज सीखा है। हो सकता है आपके कुछ प्रश्न भी होंगे, वो आई टेक इट देम ऑल। बिफोर आई कंक्लूड, आई प्रे टू द गॉड ऑलमाइटी, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब खूब अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, सक्षम, समर्थ बने, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारत के अच्छे नागरिक बने, अच्छे टीचर्स बने, अच्छे प्रोफेसर्स बने, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बने, अच्छे वैज्ञानिक बने, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे एंटरप्रेन्योर, और सबसे महत्वपूर्ण फौजी हूं, अच्छे फौज के अधिकारी बने। ऑल द वेरी बेस्ट। एक और मेरे को पोएम याद आती है और मेरे दिल में हमेशा बहुत संजो के रखता हूं। उठो धरा के वीर सपूतों, आप सब हिंदी बेल्ट के हैं, धरा जानते होंगे, धरा इज पृथ्वी। उठो धरा के वीर सपूतों, एंड सपूतों इज ए कॉमन जेंडर हेयर, मेरी बेटियां ये सब शामिल हैं इसमें। उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, भारत के जन जन में नव स्फूर्त, नव प्राण भरो। ये आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि भारत के लिए जियो, भारत के लिए मरो, भारत के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में कभी भी पीछे मत हटो। तभी हमारे युवा, जो भारत की बहुत बड़ी युधिष्ठिर है, आप सब में ही सब राम बसते हैं, आप सब में ही देवियां बसती हैं। एक और अभी मुझे कविता याद आ गई, मैं चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि हर गांव है,
हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जय हिंद, जय भारत। एनी क्वेश्चंस अगर किसी के कोई हो, क्योंकि सम ऑफ यू आर आई थिंक बडिंग इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ऑल्सो यहाँ पे, तो आपको अगर मैडम 5-10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर। हाँ, आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, इंडियन आर्मी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में, नेवी के बारे में, या कोई भी और जो आप सोचते हो जो मैंने बोला है उसके ऊपर जरूर आप, इट्स ओपन टू यू, आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप प्रोफेसर अच्छा, ज्वाइनिंग के लिए यस यस यस। बेटा आप सब लोगों ने काफी, नहीं आई एम ओके सर, आई एम ओके सर। भारत में जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के जो एनडीए का, तो वो पीछे छूट गया आप लोगों के लिए। जो अभी एंट्रीज हैं जो आप कोशिश कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ यू आर टेक्निकल पीपल, बट देर इज अ सीडीएस एग्जामिनेशन जो कि डायरेक्ट एंट्री इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, जहाँ पे 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद आप ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स ओटीए गया में, वो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप, अभी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसमें काफ़ी सुधार हो चुके हैं। पहले जब शुरुआत हुई थी तब 5 साल, एक्सटेंडेबल बाई अनदर 5 years, फिर 4 किया, और अब 10 years और 4 years, तो 10 साल आप नौकरी कर सकते हैं, उसके बाद आप बाहर आ सकते हैं। और एक और चीज़ बता दूं, वो प्रिपेयर करते हैं आपको सेकंड कैरियर के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जब लास्ट ईयर होता है तो आपको IIM वगैरह में एक एग्जीक्यूटिव MBA होता है, जिसका कि पूरा फीस वगैरह गवर्नमेंट भरती है, और उसमें आप गवर्नमेंट मतलब फुल पे पे जा सकते हैं। कुछ 6 महीने के हैं, 1-2 शायद 1 साल का भी है, लेकिन एग्जीक्यूटिव MBA आप कर सकते हैं, जिससे कि आप सेकंड कैरियर के लिए। इसके अलावा आप डिप्टी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट पैरामिलिट्री फोर्स में, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम जो कि केवल उनके लिए है जो कि BE किए हुए हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री फॉलो की है, उनके लिए 1 साल, और उसके बाद जब वो कमीशन हो जाते हैं तो 1 साल की एंटीडेट भी मिल जाती है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन पहले ही कर लिया है, आपने BE की डिग्री पहले ही ले ली है, नहीं तो आर्मी को देनी पड़ती, तो इसलिए आर्मी आपको 1 साल की एंटीडेट देता है, मतलब सीनियरिटी देता है आपको। तो वो है जो रिटन एग्जामिनेशन है, मैं नहीं समझता इतना डिफिकल्ट है। आर्मी डज नॉट नीड साइंटिस्ट ऑफ वेरी हाई कैलिबर। आप लोग, काफी लोग, शायद हो सकता है 1-2 आप में से भी हों जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड पहले दे चुके हों, और जब बड़ा मैं समझता हूँ, मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट में मैं ह्यूमन रिसोर्स का हेड था इंडियन आर्मी का, तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड वगैरह सब मेरे अंडर में थे, और मैं जाता था जब भी SSB का फाइनल डे, नॉर्मली जिसको आप लोग कहते हैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, वो कॉन्फ्रेंस जिस दिन होती थी उस दिन मैं जाता था और अटेंड करता था, देखता था, और दुख भी होता था क्योंकि 50, 60, 55 में से 1 या 2 सेलेक्ट होते थे। लेकिन मैं बच्चों ये बता दूं आपको, कभी भी उससे निराश नहीं होना है, क्योंकि आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है वो उस पैरामीटर्स पे आपको टेस्ट करते हैं जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है। आर्मी की रिक्वायरमेंट है कि आप लीडरशिप रोल, दूसरों के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान कैसे कर सकते हैं, और साथी को कैसे लेके चल सकते हैं, टीम वर्क कैसे कर सकते हैं, नेतृत्व कैसे कर सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में। वो सब वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कोई एकेडमिकली ब्रिलियंट नहीं चाहिए, एक एवरेज हो, लेकिन उसमें ये सब क्वालिटीज हों तो आर्मी के लिए वो फिट है।
स्पोर्ट्समैन जरा अच्छे होते हैं, नियम कानून को पालन करते हैं, क्योंकि हर स्पोर्ट्स के नियम कानून होते हैं, तो उनको अपने जहन में आ जाता है कि कि मुझे नियम कानून फॉलो करने चाहते हैं। तो उस तरह से आपको बताऊं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी एसएसबी लिया था और वो फेल हो गए थे, बट यू लुक एट इट, ही रोज टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। तो इस तरह की चीजें हैं। अब नेवल एकेडमी के लिए डायरेक्ट एडमिशन होता है, एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी डायरेक्ट होता है, फ्लाइंग ब्रांच अलग है। पहले फ्लाइंग ब्रांच के लिए केवल एनडीए से जाते थे, अब डायरेक्टली भी जाने लगे हैं। तो अवसर तो बहुत हैं। मैं समझता हूं जिसमें एक फौज को ज्वाइन करने की एडवेंचर स्पिरिट है कि फौज के लिए मैं जाऊंगा ही मैं, वो तकरीबन सब सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं बेटियों के लिए कहूं, वुमेन एंट्री उस वक्त तभी तकरीबन उसमें काफी मॉडिफिकेशन हुए थे, और शुरुआत पहले शुरू में थी जब केवल जैक ब्रांच और एजुकेशन, जैक ब्रांचेस हमारी जो लीगल डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन ब्रांच, इन्हीं में जाते थे। बाद में ये सब सिग्नल इंजीनियर्स, एयर डिफेंस, इस सब में जाने लगी हमारी बेटियां। तब वो टाइम था जब मैं 2008 से 11 तक इस अपॉइंटमेंट में था। बहुत अच्छी स्टैंडर्ड मैं कहूंगा, और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारी बेटियों ने बहुत ही अच्छे उम्दा दर्जे का प्रदर्शन किया है। सर्विस के बाद भी यूएन में गई हैं, जहां भी यूएन हमारे पीस कीपिंग बटालियंस हैं उनके साथ गई हैं, जहां भी कहीं वो अगर हमारे डिफेंस अटैची के साथ भेजी गई हैं, या कहीं भी उनको जो भी कोई टास्क मिला है, बहुत ही एक उम्दा दर्जे का उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो अब वो समय आ गया है जब कंधे से कंधा मिला के हमको चलना है, और अवसर बहुत हैं, वैकेंसीज भी बहुत हैं। 1600-1700 हर साल आर्मी की वैकेंसी होती हैं, 100-150 के करीब नेवी एयरफोर्स दोनों मिला के होती हैं। तो अच्छी खासी तादाद है, लेकिन केवल एक चीज है कि आपको एक टीम के साथ काम करने का तजुर्बा, आपको हमेशा अपने टीम वाले साथी की याद रखनी, साथी की ज्यादा केयर रखना फौज में बहुत जरूरी है। आपको बताऊं 1971 वॉर, ढलाई ईस्ट पाकिस्तान में, मैं सिलट सेक्टर में था, हमारे थोड़ा साउथ ढलाई 57 डे अगरतला के अपोजिट, वहां पे एक डेथ हो गई और उसकी डेड बॉडी हम लोग नहीं ला पा रहे थे। लेकिन देखिए, जाट बटालियन थी, उन लोगों ने छोड़ा नहीं, 7 लोग और बलिदान हो गए, लेकिन वो जो हमारा बलिदानी था उसकी बॉडी हमने वहां पाकिस्तान के उसमें क्षेत्र में नहीं छोड़ी, लेकर आए। तो ये जो भावना है, ये बहुत, कि अपने साथी को कभी नहीं छोड़ना, अपने टीम को लेके चलना है, उसका नेतृत्व करना है। डिफिकल्ट टाइम में होता है, अगर एक रोटी है तो आधी रोटी उसको देके खानी है। तो ये जो चीजें हैं, और नेतृत्व हमेशा कभी नेवर गिव अप, कोई ना कोई, जो मैं कह रहा हूं कि जो अभी आपको हनुमत बताया, ही केम आउट 16-17 तीसरे दिन वो उसको निकाल लिया गया था। अल्टीमेटली ऑफ कोर्स टू मच ऑफ वाटर इन हिज लंग्स चला गया था, तो उसकी वजह से ही कुडंट सर्वाइव, बट ही वाज इवैक्यूएटेड टू दिल्ली। सियाचिन से दिल्ली पहुंच गया था, उसके बाद उसकी बलिदान हो गया। लेकिन दैट इज व्हाट वी नेवर गिव अप, दैट नेवर से डाई की स्पिरिट बहुत जरूरी है। अच्छा, ठीक। और एनीथिंग एल्स? हाँ बेटा, ना वो आई गिव द, बिटिया को दूंगा फिर तो आप बस ये लास्ट है 2, फिर देन वील। हाँ जी। व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? दीक्षा जैन। ओके, ले लो बेटा, आई विल बी एबल टू हियर। Hello. Sir, as you have mentioned earlier that our country has done many of the blunders
and those all blunders are from the political side. But if we want to join armed forces, how will we just prevent those blunders? अब आपको एक एग्जांपल देता हूं 1970. यस, हाउ कैन यू प्रिवेंट? यू नीड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप. व्हाट आई सेड, 1971 जब ये रिफ्यूजीज काफी तादाद में भारत में आ गए थे, करीब 1 करोड़ के करीब, एंड भारत के ऊपर बहुत बोझ था. उनको खाना, उनका पानी, उनको रहन सहन, सब कुछ हमने देखभाल करनी थी. मिसेस गांधी वेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. हर जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण देश थे सब में गई, सबसे कहा कि ये है, हमको मदद करिए, ये हम नहीं, हमारे ऊपर बहुत बोझ पड़ रहा है. एंड नॉट वन ऑफ देम gave any support to her. And one of the, I'll not give the name now, but that insulted her also. That's why she took a decision that military option is the only option. She wanted, the whole cabinet wanted that we should go in May, June of 71, we should launch the offensive in Pakistan, Bangladesh, that time Pakistan. It was Field Marshal Manekshaw. So this is what he prevented. He said कि no, nothing doing. We can't go because बांग्लादेश में रेवरिन टेरेन है, कुछ दिनों में मानसून आएंगे और सब फ्लडेड हो जाएगा. हमारे पासेस जो चाइना पे हैं वो सब अभी खुले हुए हैं और चाइना भी हमको परेशान कर सकता है, हम कोई वहां से ट्रुप्स नहीं हटा पाएंगे. So this is what is needed. Give the right advice. And he put his foot down. In fact, some of you may have seen this movie in which he says, मैं त्याग पत्र कब मैं अपना त्याग पत्र दूं. उसमें विकी कौशल का जो कि he was prepared to give his resignation also. He says select another one, and that is what is he prevented a blunder. If we had gone in May, June, we would have had a rough time. At least the nation wouldn't have been created. We wouldn't have lost, but वो slug fest हो जाता, बड़ा धीरे धीरे चलता. When we went in October, November, in fact December, but November onwards, we were at least carrying out some preliminary operations. उस वक्त passes बंद थे, we could lift troops from China border. काफी troops, almost 2 division plus came, and the terrain was good. We did it in 13-14 days. So that is what the blunders can be. Have courage of conviction. The courage which आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि moral courage and physical courage. बैठ जाओ बेटा. Moral courage and physical courage. This is moral courage. Physical courage is भाग दौड़ और never give up वाला. लेकिन जब महात्मा गांधी का जो moral courage, that is what it is required. So have the moral courage to say what is correct. हाँ बेटा, last question and then we'll. जैन सर. हाँ. सर, माय नेम इज कैडेट पुष्पेंद्र प्रताप सिंह यादव. सर, जैसे आपने पहले कहा कि लीडरशिप और टीम वर्क जो आर्मी में बेसिकली डिसिप्लिन का रूल है, तो सर एज अ सिविलियन हम कैसे अपने अंदर लीडरशिप और डिसिप्लिन को अपस्किल कर सकते हैं? हर जगह कर सकते हैं. लीडरशिप कहीं भी हो सकती है. बैठ जाओ बेटे. हमारी माया कॉल, इन्होंने लीडरशिप यहाँ पे इन्होंने महिलाओं को इकट्ठा कर लिया है, उनको एक डायरेक्शन दे रही हैं, उनको जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको लीड करती हैं. लीडरशिप कहीं भी हो सकती है. लीडरशिप आप अपने क्लास में स्टूडेंट को सही काम करने के लिए प्रेरणा दे सकते हो, प्रोत्साहित कर सकते हो. उनका गेम्स में उत्साह उमंग के साथ खेलने के लिए आप लीडरशिप दे सकते हो. अपना पर्सनल एग्जांपल दे सकते हो कि किस तरह से छलांग मारी जाती है. तो ये सब चीजें हैं जिनसे आप, leadership can be imbibed, leadership can be displayed, lot of things. Leadership is a separate lecture as such. So वो मैं अभी यहाँ पे नहीं आपको, लेकिन I hope we are a little better interactive session. अभी थोड़ा समय कम है. मैडम ने कहा है कि और थोड़े बच्चों से बात करनी है. आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब ने यहाँ मेरे को सुना. I am so lucky to have come here and talk to you. All the very best. Once again, be a good Indian. एक भारतीय अच्छे बनो बस. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing your words of wisdom with us
and guiding us to a better future. Now, I request respected Principal Ma'am Dr. Archana Kirti Chaudhary Madam to present a memento to our respected guest as a token of love and respect. Now, thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I request Head of the Department of Electronics and Communication, Professor Rupesh Dubey, sir, to present the memento to honorable guest, Mrs. Maya Kaul, Madam, President, Akhil Bharatiya Sainik Seva Parishad, Sainya Mato Shakti, as a token of love and respect. Please give a huge round of applause. Thank you, everyone. Now, I would request respected Principal Dr. Archana Kirti Chaudhary Madam to present the vote of thanks. On behalf of IPS family, in fact, IPS Academy, I would like to say thanks. I think thanks is not sufficient. ये तो बहुत छोटा वर्ड हो गया. हम thanks क्या बोले सर? हम तो overwhelmed हैं. But मैं अपने soldiers, जो मेरे कॉलेज के soldiers हैं, उनसे जरूर मुझे एक कमिटमेंट चाहिए. आपका क्वेश्चन था कि लीडरशिप कैसे हो सकती है. यू कैन लीड द शो. ओनली द थिंग इज यू एंटर इन द ओशन. आप उतर के देखिए समंदर में, तब आपको गहराई पता चलेगी. ऊपर से बैठ के गहराई नहीं पता चलती. चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो एजुकेशनल एकेडमिक लीडर हो या फौज पे जाने वाला सोल्जर हो, उसको हर बारीक चीज पता होती है. और वो जब ही पता होती है जब आप फुल डेडिकेशन से चीज को समझते हैं, फुल डेडिकेशन से समझने की कोशिश करते हैं. ना आपके कंधों पे बड़ा बोझ है. एक्चुअली यू आर फ्लडेड विथ नंबर ऑफ एक्टिविटीज, बट एट द सेम टाइम you have to prove that you are an Indian. Indians are ruling all over the country, not within the country, all over the globe. But one thing is missing. I'm sorry, sir. One thing is missing, which needs to be inculcated at this right place. We all are not committed. We are not supporting our community abroad. We are Indians. Like other countries, if there is a problem faced by any Chinese at any country, whole students or the persons who are living in that country collectively encounter the problem. But unfortunate part at our Indians, we forget to help our neighbor, our friends outside the country. बिकॉज उसे उस समय कोई नहीं चाहिए, केवल अपना दोस्त चाहिए. और हम अनफॉर्चुनेट पार्ट होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पर हम उनसे ही कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं. ये शुड नॉट डू. आप प्राउड कब फील कराएंगे इंडिया को दैट यू आर ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, यू आर द बिगेस्ट कम्युनिटी, यू आर मतलब सबसे ज्यादा बड़ा रेशो किसी भी कंट्री में है आउटसाइड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स का, तो इंडियंस का है. Employees and employers both are maximum in number outside the country and within the country, of course, but outside the country also. The only thing is required, you help your brothers and sisters. You should not forget, because all Chinese, I've seen, my daughter is working at America. I know the challenges faced by the Indians who are outside. So I humble request to everyone, you should support your friends. You are the, like हम कहते हैं ना, बच्चों को उड़ना सिखाएं, तो उड़ने में बढ़ने के लिए जो हौसला है वो आपसे ही मिलेगा. सर ने जो बताया वो बहुत अच्छा बताया. इनफैक्ट यू आर द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी, और रादर आई कैन से यू आर द रियल आर्किटेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी. सो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इंडियन प्राउड, एंड वी वांट टू बी प्राउड ऑन यू बिकॉज यू आर फ्रॉम इंडिया, और हमें तुम पे गर्व होना चाहिए. जय हिंद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू. Thank you so much, madam. Now, I request all the dignitaries of NCC and head of the department of IPS Academy to please come upon the stage for a memorable photograph with our chief guest. I request all the cadets of NCC to please come upon the stage and join them. Now I request all the students to please stand up for a group photograph. जनगण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you everyone. Now all the students are requested to continue with their regular academic calendar.